Hello and welcome to the second lecture for corporate restructuring. Mm, we have already started with the part A, that is for the corporate restructuring, and all those students who are watching this lecture on YouTube and are willing to join the batch, you can give me a call or WhatsApp on this number, or you can drop me an email, or you can get in touch with me through social media on these two handles. Then this was the sequence which we had to start और हमने already यहाँ पर chapter 1 को शुरू कर दिया है. And we just discussed in our previous lecture that how the chapter 1 questions, like the questions from chapter 1, how they are asked, because they are mostly either comment based or they are the straightforward question. The questions would be in the analytical manner as well. And the broad areas in which the questions are asked is the need for corporate restructuring, the tools for corporate restructuring, the mode for corporate restructuring. And recently they had asked which is the most suitable mode for given a situation, which is going to be the suitable mode for a corporate restructuring and the different types of corporate restructuring. The exam marks weightage put somewhere around 5 to 10. So we had also seen this graph with which we had got the idea that this is important because minimum 5 and maximum it can go up to your 15 marks in your exam. Now, when we talk about restructuring would mean what? It would mean changes, and changes would include any addition, deletion, or modification, right? Either of the three, or it could be all of the three. That amounts to your corporate restructuring. Now, when we see the different types of growth, right, or the expansion, we see that we have two types of growth. One is the organic growth, another is the inorganic growth. Now, growing organically is growing slow, and growing inorganically is growing fast. And how does this happen? Because when you do an inorganic acquisition or inorganic expansion, there it involves a lot of takeovers and the acquisitions. You acquire the well existing business, well established in the existing businesses, and that's how you expand your area and your business. Now, again, inorganic growth, this is there, that expansion by way of mergers, takeover, acquisition of the other businesses. This is what? This is the inorganic growth. And the corporate restructuring focuses mainly the focus is on the inorganic growth. Now, one more thing. Someone had asked me about the definition or a live example for the organic growth. Now, when we talk about organic growth, you see the best example for organic growth would be DMart, right? If you see the example of DMart, DMart has always grown organically. What DMart does is DMart is going to purchase the plot. Their first step would be purchase the plot so that their rental cost is zero. Once they purchase the plot, there they set up a new store. They don't go and acquire an existing retail business or a retail store and say them, okay, take down your brand name और आज से यहाँ पे डीमार्ट का बोर्ड लगा और ये डीमार्ट का सामान बेचेगा. डीमार्ट नेवर डज दैट. डीमार्ट पहले एक जमीन खरीदेगा, उस जमीन को खरीदने के बाद में वहां पर अपने स्टोर को सेटअप करता है. दैट्स हाउ दे ग्रो ऑर्गेनिकली. बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस देखोगे जैसे कि रिलायंस, तो उन्होंने काफी ज्यादा इनऑर्गेनिक ग्रोथ यहाँ पर किया है. देयर आफ्टर हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले पार्ट को मॉड्यूल में पढ़ा था, व्हाट इज द नीड एंड स्कोप फॉर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग. सो कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हम लोगों ने हमेशा देखा था दैट देयर इज अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, राइट? देयर इज ऑलवेज अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी. हमेशा आपके दिमाग में एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होगा कि आप ये कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटी क्यों करना चाहते हो. और उसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो है वो ये है. स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम के अंदर ये एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है. इट कैन बी स्ट्रेट अवे आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स. And as I had said yesterday that today I'll explain you these points and what all examples you can write in. तो आप ये देखो, ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया, ये पॉइंट नंबर 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So you have 10 different objectives of corporate restructuring. And in the next slide, I'm just going to write examples. So first point, अगर आप यहाँ पे देखो कि to enhance the shareholder value. So yesterday, Mansi, you had asked कि सर हमें ये सारे के सारे points को elaborate करके लिखना है, or do we have to just mention these points? So ideally speaking, you just have to mention these points. But yes, if you can explain it in 1 to 2 line, it would be good. And if you do not have time to explain it in 1 to 2 line, best would be write a example.
आप ये लिख दो टू एनहांस द शेयर होल्डर वैल्यू, और उसके बाद में आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिख दो। तो एग्जाम्पल्स ही है जो मैं आपको भी यहाँ पर लिखवा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द नीड एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। सो हियर इफ वी सी, आप ये देखो, जब हम बात करते हैं टू एनहांस द शेयर होल्डर वैल्यू, सो शेयर होल्डर वैल्यू को एनहांस करने के लिए द बेस्ट एग्जाम्पल कुड बी रिलायंस, राइट। रिलायंस को आप देखो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज, द शेयर प्राइस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिस वेंट अप, राइट, दिस वेंट अप ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। करेक्ट, ये आपके लिए बिल्कुल लाइव एग्जांपल आ जाता है। जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो शेयर प्राइस है, ठीक है, द रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर प्राइस, इट वेंट अप ड्यूरिंग द कोविड 19 पीरियड, करेक्ट, ड्यूरिंग द कोविड 19 पीरियड। और इसका सिंपल रीजन क्या था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्टिविटीज किया था, राइट। इन्होंने कुछ जगह अपने स्टेक को बेचा था, ठीक है, जैसे कि फेसबुक को इन्होंने अपना स्टेक बेचा, दे डिड सम एक्विजिशंस, और इन सब की वजह से क्या फायदा हो गया, दे ऑल्सो एडेड न्यू बिजनेस, जैसे कि आप ये देखो जियो मार्ट उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन। तो इन सबको जब उन्होंने शुरू किया तो उनका यहाँ पर जो शेयर होल्डर वैल्यू है वो इम्प्रूव हो गया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द शेयर होल्डर वैल्यू, एंड दिस वे द शेयर होल्डर वैल्यू increases. Secondly, orderly direction, redirection of the firm's activity. This is fine. But यहाँ पर जब आता है deploying the surplus cash from one business to finance the profitable business of another. So here you can write this example. Let's say you take example of Reliance. यहाँ पे आप दो example लिख सकते हो. One is Reliance and another is ITC. So Reliance originally was into petrochemicals. Okay. So from petrochemicals, right? So from petrochemicals, Reliance अब shift कर रहा है to telecom. करेक्ट, इट वो शिफ्ट कर रहा है टू रिटेल स्पेस एटसेट्रा। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, डिप्लॉइंग द सरप्लस कैश फ्रॉम one profitable business to finance the another one growing one. Same way you can take example from ITC. तो ITC में मैंने आपको बताया था from their tobacco division, ठीक है, उनके tobacco division से आप यहाँ पर grow कर रहे हो, and you they invested in the FMCG sector, they invested in the agriculture sector, correct. और इसके अलावा अगर आप देखो तो ITC also entered into the hotel industry, paper and stationery, पेपर एंड स्टेशनरी। तो ये आपका अलग अलग बिजनेसेस हो गया। सो दिस वे दे एक्सपैंडेड, राइट। देन एक्सप्लॉइटिंग द इंटरडिपेंडेंस अपॉन्स द प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्टिव बिजनेस। तो इसके अंदर आप यहाँ पर सिंपली एक चीज ध्यान रखना, योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। आज हम यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन को भी डिस्कस करेंगे, and we will get to know what does this vertical integration means here. So here you try to exploit the interdependence between the present and the prospective business. Thereafter, your risk reduction. So what happens in case of risk reduction? Again, you try to avoid over dependence on one particular business and you do diversification. So what happens in case of risk reduction? You are going to do diversification, right? Diversification of businesses. So I think it was not fourth, it is will be the fifth point. So for second point, we have not written any of the example. So I'll just erase this part. So this is for your point number 3. This is for your point number 4, and this is for your point number 5. So you do diversification, and diversification say you try to enter into new businesses, right? And new and different businesses. And this way you do the risk reduction. So this ensures your risk reduction. This is one point. Then you have development of core competency. So core competency, I said you that it is something which gives the edge over your competitors, right? So this is to provide. So sixth point you can write core competency to get competitive advantage over the competitors. To get the competitive advantage. Okay. To get the competitive advantage, or you can also write to get edge over the competitors. To get the edge over the competitors. So this is going to be the point. Then to obtain the tax advantage, for tax advantage, this is your section 72A, right? So your section 72A of the Income Tax Act.
right, with the income tax act. And whenever you write any act, please uska year bhi aap wahan pe mention karo, it's very important. So as per section 72 of the income tax act, what you try to do when you do merger, you try to get the benefit, you try to obtain the benefit of, the losses, right, the losses of the company, and these losses are set off and also they are carried forward. These are carried forward. So यहाँ पर आपको ये benefit हो जाएगा. Then to have the access with the better technology. So in case of this, you can write, let's say Hero and Honda. Honda got technology to Hero cycles. Then again Maruti Suzuki. So here also you get the superior technology, and all other companies which enter into the collaboration agreement, the technological collaboration agreement, so ये आपके लिए यहाँ पर point आ गया. Then to become globally competitive and to increase the market share. So to increase the market share is basically you do your horizontal integration. So your 10th point. 10th point, the example for 10th point is your horizontal expansion. So here the spelling of horizontal, right? So you do horizontal expansion. Now what happens in case of horizontal expansion? You basically take over your competitors. Okay. Take over your competitors. अभी आप beat करें तो say example, let's say Apollo tires. Okay. Apollo tires is taken over by let's say JK tires. ये आपके लिए क्या हो गया यहाँ पे expansion. Tell me, is this clear? Is this clear? Yes, sir. ये पॉइंट्स आप लोग मेरे को बोल रहे थे कल एग्जाम्पल के लिए, राइट? दिस इज क्लियर. ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ आगे हैं एंड वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग. सो वी विल स्टार्ट विद different types of corporate restructuring. So for restructuring here, broadly it falls to four category. One category is called as financial restructuring. Hello, sir. Right, one is called the yes. Sir, your voice is not clear. To career. Fine. Is it fine now? हाँ, sir. Okay. Okay, fine. So first point here we have case financial restructuring. So in case of financial restructuring, this is what as the balance sheet restructure. You want to restructure the balance. When we talk financial restructuring, Mansi, am I audible there? Yes, sir. Okay. So we do बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग. अब बैलेंस शीट को आपको क्यों रीस्ट्रक्चरिंग करना होगा, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग आपको क्यों करना होगा? So there will be only two reasons why you want to do a balance sheet or you want to do a financial restructuring. One is either your balance sheet is over capitalized, your balance sheet is over capitalized, or you say the balance sheet is under capitalized. अब ये दो टर्म को समझ लेना. And these two are directly related to your another chapter. So I said you will be doing one chapter that is called as financial restructuring. Here we have that financial restructuring. So we'll be doing this chapter, there we will get it again. But that chapter also starts with this point, that why do we need to do a financial restructuring? Because our balance sheet is over capitalized or our balance sheet is under capitalized. इन दोनों ही केसेस में क्या होगा? It will result in your poor financials.
आपका जो बैलेंस शीट है, जो परफॉर्मेंस है, दिस विल रिजल्ट इन पुअर फाइनेंशियल्स और आपके बैलेंस शीट के ऊपर प्रेशर आएगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय अ ओवर कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट. ठीक है. When I talk about a overcapitalized balance sheet, this means, see, a very simple point. आपने एक बिजनेस में, सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, ठीक है, यू आर अ बिजनेसमैन, आपने किसी से लेट्स से 1,000 रुपीज बोरो किया. यू हैव बोरोड दिस 1,000 रुपी टू स्टार्ट योर बिजनेस. ओके. एंड हुसोएवर बैंक इज, लेट्स से यहाँ पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको 1,000 रुपया उधार दे दिया और 1,000 रुपीज से आप यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो. And State Bank of India said that I want interest at the rate, let's say 12%. ठीक है, ये क्लियर है आपको? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपको 1,000 रुपया दिया, आपने 1,000 रुपीज बोरो किया स्टेट बैंक से और आपने बोला मैं 1,000 रुपीज को इन्वेस्ट करना है मेरे को. एंड ये 1,000 रुपीज आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो. Now when you invest this 1,000 rupees, you are going to get a return on this, correct? और जहां पर भी आप इसको इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है. लेट्स प्रिज्यूम 18% का आपको रिटर्न मिलता है. So you would say 1,000 rupees पे 18% का रिटर्न, this means I am making a profit of 180 rupees. Out of this मुझे 12% इंटरेस्ट देना है, तो मैं 120 का यहाँ पे रिटर्न, जो अपना रिटर्न में से इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट को मैं यहाँ पर पे कर देता हूँ. And then this balance 60 rupees is what? This 60 rupees is the profit. This 60 rupees is the profit. आप बताओ, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ एग्जाम्पल आपको? Yes, sir. राइट. अब मैं आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट बताता हूँ. What is wrong here? What happens wrong? सेम एग्जाम्पल यहाँ पे हो रहा है. You go to SBI एंड SBI से आप लोन लेते हो और SBI से आपने लोन कितना लिया? You have taken loan for 1,000 rupees, okay? And this loan is to be paid at the rate 12% per annum. Now, when you are trying to invest it in the business, you are able to invest only 700 rupees. Okay, you are able to invest 700 rupees and the balance 300 rupees is still lying idle. ये आपके अभी भी बैंक में 300 रुपए एज इट इज पड़े. अब आप ये जो 700 रुपीज है, इस 700 रुपीज के ऊपर आप रिटर्न कमा रहे हो. लेट्स से पिछली बार 18% दिया था ना, इस बार मैं आपको बोलता हूँ 20% रिटर्न कमा रहे हो. आप मुझे बताओ 300 अगर आपके बैंक में आइडल पड़ा है तो क्या इसके ऊपर आपको कोई रिटर्न मिलेगा? विल यू गेट एनी रिटर्न ऑन दिस? No. नो, यहाँ पर आपका कोई रिटर्न नहीं है. सो आप अगर अपना इस वक्त टोटल रिटर्न को चेक करो, so लास्ट टाइम योर टोटल रिटर्न वाज व्हाट? 1,000 एंड ऑन 1,000 दिस 18%, तो आपको 180 रुपीज का रिटर्न मिल रहा था. अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो आप 700 के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहे हो? 20%. दिस मीन्स यू आर अर्निंग 140 रुपीज एंड इस 300 के ऊपर आपका नील रिटर्न है, तो दिस इज जीरो. सो ओवरऑल ऑन दिस 1,000 रुपीज व्हाट इज योर रिटर्न? Your return is 140 rupees, correct? Your return is 140 rupees, but यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट को डिडक्ट कर दोगे, that is 120 rupees, तो आपको कितना रिटर्न मिला? सिर्फ बैलेंस ओनली 20 rupees. Yes or no? So ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया, करेक्ट? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ये दोनों Yes, sir. सिचुएशन क्लियर हुआ? आप यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहे हो, यू आर ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट हियर, यू आर ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट हियर. बट in this case there is a problem. Why there is a problem? That you have taken loan for 1,000 rupees on which you have to pay a interest of 12%. Okay, irrespective whether you invest that or not. In fact अगर आपको यहाँ पे 1,000 rupees पे कोई लॉस भी हो गया तो भी आपको ये 12% इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है. Now the problem is you are not able to invest the entire amount, hence you have certain amount which is lying idle, जिसके ऊपर आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है, ठीक है, आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है दैट इज वे टू मच. ठीक है, आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है दैट इज वे टू मच एज कंपेयर्ड टू योर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी.
आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ 700 रुपीज का है और आपने बिजनेस में फंड्स कितना लगा दिया, 1000 रुपीज फंड्स लगा दिया। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आपका बैलेंस शीट क्या है, आपका बैलेंस शीट ओवर कैपिटलाइज्ड है। योर बैलेंस शीट इज ओवर कैपिटलाइज्ड। अब सपोज करो आप अगर इस कंपनी के सीएफओ हो, तो मुझे बताओ आप क्या एडवाइस करोगे, या आप अगर इस कंपनी के मर्चेंट बैंकर हो, आप इस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आप मुझसे बताओ आप इस कंपनी को क्या गाइड करोगे कि कंपनी को क्या करना चाहिए। व्हाट शुड कंपनी डू कि ये कंपनी ठीक हो जाए। एनालिटिकल क्वेश्चन बताइए, व्हाट शुड द कंपनी डू। सर ऐसे हो सकता है कि पहले कंपनी को एस्टिमेट कर लेना चाहिए ना कि उसको कितना इन्वेस्ट करना है, वो उतनी बोरोइंग्स ले। ओके, लेट्स से कंपनी को 1000 का बोरोइंग मिला, चलिए यहाँ पर हमने बात किया था बोरोइंग्स का। अब आप एग्जांपल लो, कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिया। सो कंपनी को लगा कि यार 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट दे दिया, बाद में मार्केट में डाउन आ गया, या लेट्स से अब वो इन्वेस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ा, उन्होंने जो एस्टिमेट कर दिया था। अब बताओ क्या होगा, क्या ग्रेजुअली अब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इतना नहीं बचा, अब आप इस केस में क्या करोगे। यू स्टिल हैव 300 रुपीज आइडल इन योर बैलेंस शीट, क्या करोगे आप। सर हम्म, किसी और ऑब्जेक्ट में नहीं लगा सकते, मतलब? नहीं है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ 700 का ही है, और नहीं है, अच्छा कंपनी के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि कहीं और वो पैसे को लगा सके। तो अब क्या करोगे आप, व्हाट यू वुड डू। सर, बायबैक नहीं कर सकते, 300 रुपीज वापस पब्लिक को वापस दे दिया। सो सिंपल, यहाँ पर ये जो सरप्लस आपके पास है, ये जितना भी आपके पास एक्सेस फंड्स पड़ा है, इस एक्सेस फंड्स को आप क्या करोगे, आप बोलोगे इस एक्सेस फंड्स को रिटर्न कर दो। सो लेट्स से यू वुड से कि मेरे पास इक्विटी शेयर्स एक्सेस में है, तो आप बोलोगे एक काम करो, बाय बैक कर लो। आप देखो टीसीएस को, देखो कितना बाय बैक करता है कि नहीं। जितने भी ये आईटी कंपनीज है, ये आईटी कंपनीज बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट को कमाकर रिजर्व्स में नहीं रखते, ये बायबैक कर लेते हैं, और बायबैक करके शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर देते हैं। अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कर दो। आपके पास अगर डिबेंचर्स है, तो आप डिबेंचर्स को भी क्या बोलोगे, इसको रिडीम कर दो। अगर आपके पास सपोज करो लोन्स है, बोरोइंग्स है, तो आप उसको क्या बोलोगे, रीपे दैट। यस और नो, यस और नो। यस सर। तो ये आपके लिए क्या हो गया, व्हेन यू आर ओवर कैपिटलाइज्ड। तो ओवर कैपिटलाइज्ड अगर आप हो, तो आपके पास व्हाट आर द ऑप्शंस, और व्हाट आर द एक्शंस यू विल डू in case you want to do financial restructuring. So as I said, financial restructuring is what it is, balance sheet restructuring. And in case of balance sheet restructuring, either your balance sheet is over capitalized or your balance sheet is under capitalized. If your and both the things impact your financials, ये दोनों ही आपके financials को खराब करेगा. So if your business is, or if your balance sheet is over capitalized, तो over capitalized कैसे होगा, ओवर कैपिटलाइज्ड में पहला पॉइंट आपके पास ये होता है कि आपके पास जो फंड्स हैं, योर फंड्स आर मोर in the balance sheet as compared to your investment opportunity, which results in a surplus cash which is there in your balance sheet. So that surplus amount which is not being able to invested, then in that case आप इसको क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। और रिटर्न करने का यहाँ पर तरीका क्या रहेगा, you can do buyback, you can do redemption of the preference share, you can do redemption of the debentures, or you can repay the loan. So one of the tool of over capitalized balance sheet, ये मैं आपको एक बार शॉर्ट में लिखवा भी दूंगा। दूसरा ओवर कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट कैसा हो सकता है, अगर आपके बैलेंस शीट में लॉसेस है, if in your balance sheet you have losses, or if you have, let's say, fictitious assets, right, just connect this with the एग्जीक्यूटिव में जो अकाउंट्स में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। सो आर यू वर देयर फ्रॉम द ओल्ड सिलेबस और फ्रॉम द न्यू सिलेबस एग्जीक्यूटिव। ओल्ड सिलेबस, ओल्ड तो से। आपने ओल्ड सिलेबस में तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, करेक्ट। हाँ तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर आप देखो, तो ये एग्जैक्टली आपका क्या हो जाता है, ओवर कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट। सो लेट्स प्रिज्यूम, एक रफ एंड बैलेंस शीट में आपको बना के देता हूँ। Let's say this is the balance sheet. You have equity share capital, which is, let's say, 1000 rupees. You have some fixed assets here, और fixed assets से आपके पास, let's say, 600 rupees का. You have some current assets, let's say this is
₹300 और यहाँ पर आपके पास है मिसेलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट रिटर्न ऑफ, या आप इसको ऐसे मान लो दिस इज योर डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। हालांकि वो तो यहाँ पर रिजर्व्स में नेगेटिव में आता है, बट जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। तो ये आपके पास जो वैल्यू है दिस इज ₹100। नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो ओवर कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट बिकॉज योर एसेट्स are less as compared to your, or the value of the assets is less as compared to the funds invested. करेक्ट। अब आप इसको पैरिटी में कैसे करोगे? इसको पैरिटी में करने के लिए यू वुड से राइट ऑफ दिस, इसको आप बोलोगे राइट ऑफ दिस अमाउंट। लेट्स राइट ऑफ दिस ₹100। इस ₹100 को आप राइट ऑफ कैसे करोगे? आप इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर रिडक्शन कर देते हो, यू डू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, करेक्ट। सो अनदर थिंग, इफ द बैलेंस शीट इज ओवर कैपिटलाइज्ड, what is the another tool that you have is the reduction of share capital. This is the reduction of share capital. This also you can do if your balance sheet is what, if your balance sheet is over capitalized. And over capitalized में यहाँ पर जो logic था वो क्या था, that your funds available are more as compared to the investment opportunity. And here I said that the balance sheet has got some losses or some fictitious assets. तो इन फिक्टिशियस एसेट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जब आप उसको राइट ऑफ करोगे इट वुड अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। क्या ओवर कैपिटलाइज्ड वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ? This was one part of financial restructuring, over-capitalized. Is this clear? Yes, sir. Now you will have exactly opposite, which is what? Undercapitalized. Now I need not tell you what is a undercapitalized balance sheet. What happens in case of undercapitalized balance sheet? So in case of undercapitalized balance sheet, you need more funds, but the company does not have enough funds, right? The investment opportunities are there, but the company does not have funds. So undercapitalized, there are only two situations. One is that the company does not have funds. It is insufficient funding. So this is insufficient funding. Okay. So this is insufficient. There is insufficient funds. So insufficient funds है आपके पास, तो वहां पर आप क्या करोगे? You are going to infuse more funds. You are going to infuse more funds. And how you can infuse more funds? आप simply बताओ, आप और funds कैसे business में डाल सकते हो? आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? You will have to, let's say, raise equity shares. ठीक है, raise funds through equity shares. आप equity shares को issue करो, या फिर आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स को आप इशू करो, टेक लोन, इशू डिबेंचर्स, यहाँ पे ये एक आपका ऑप्शन होगा। दूसरा अंडर कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट कब हो सकता है? व्हेन द बैलेंस शीट हैज टू मच डेट। बहुत ज्यादा डेट अगर बैलेंस शीट में है तो वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन होगा, दैट यू मस्ट रेज मनी थ्रू इक्विटी वाया इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपको इक्विटी शेयर्स यहाँ पर इशू करना पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू वर्क इट आउट। आप बताओ, ये क्लियर हुआ आपको? क्या ये क्लियर हुआ आपको? अंडर कैपिटलाइज्ड एंड ओवर कैपिटलाइज्ड। सो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, टू थिंग्स। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, राइट? Only they ask you what is financial restructuring. So in case of financial restructuring, first and foremost thing you are going to write, in case of financial restructuring, it is basically what? It is balance sheet restructuring. First point. Second point which you are going to write is that in this case, either the balance sheet is over capitalized or the balance sheet is under capitalized, and then you are going to explain over capitalized क्या होता है. तो over capitalized situation where the funds are surplus. Okay, funds are in surplus as compared to the investment opportunity, which means there is idle funds. Okay, there are idle funds. Or secondly, in that case, in case of over capitalized balance sheet, you would say that the company has losses in the balance sheet, losses and the fictitious assets. The company has fictitious assets in the balance sheet. So here you would say repay the surplus. तो ये आपके पॉइंटर्स में आता जाएगा, repay the surplus. You need to explain it
to the examiner in a very logical manner that balance sheet restructuring. So balance sheet restructuring क्यों करना पड़ता है? ऑप्शन वन ओवर कैपिटलाइज्ड है, ओवर कैपिटलाइज्ड में ये आपका सब पॉइंट वन हो जाएगा. सो दिस इज लेट्स से योर पॉइंट नंबर वन, दिस इज योर पॉइंट नंबर टू. सो पॉइंट नंबर टू में ये आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब पॉइंट सब पॉइंट ए सब पॉइंट बी. फिर इसमें आप यहाँ पर बोल सकते हो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, रीपे द सरप्लस. सो हाउ विल यू रीपे द सरप्लस? बाय बैक और ये सब आ जाता है. और लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा दैट यू नीड टू डू द रिडक्शन ऑफ द कैपिटल. राइट, ये आपके पास आ जाता है. या फिर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ये भी दे सकते हो दैट दे नीड टू डू द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. इनको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी करना पड़े, बैलेंस शीट रिस्ट्रक्चरिंग. देन थर्ड पॉइंट यू आर गोइंग टू explain here that it is what? It is under capitalized. और under capitalized में आप यहाँ पे क्या बोलोगे? Either the balance sheet has too much debt, excess debt as compared to equity. तो यहाँ पर आप बोलोगे raise equity capital. और इक्विटी कैपिटल रेज करने का क्या तरीका है? आप फर्दर शेयर्स को इश्यू कर दो, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करो. तो ऑल दोस थिंग्स यू कैन राइट हियर. Or the second point that you can mention here is in case of undercapitalized, you would say the company has insufficient funds. The company has insufficient funds. So if the company has insufficient funds, in that case, you would say that raise capital. Raise capital. तो ये point आपके पास आ जाता है. And why do you need to do financial restructuring? Because if there is the balance sheet is overcapitalized or undercapitalized, it results in what? It results in poor financial conditions. It results in poor financial conditions. अब ये poor financial conditions जो है, ठीक है, ये आप straight away यहाँ पर you can write multiple things here. यहाँ पर कैसे हो जाएगा आप देखो, आपका earnings per share यहाँ पर reduce हो जाता है. अर्निंग्स पर शेयर से ही आपका मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे रिड्यूस होने लग जाता है. यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द रिटर्न. राइट, यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई द रिटर्न. आप जो रिटर्न्स कमा रहे हो वो जस्टिफाइबल यहाँ पर नहीं है. यू वांट टू इम्प्रूव द लेट्स से रिटर्न ऑन नेटवर्थ और रिटर्न ऑन इक्विटी. ये सारे पॉइंट्स आपके यहाँ पर रीजंस हो जाते हैं, ठीक है. और यू वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, यू वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस फ्रॉम द बैलेंस शीट, लॉसेस ऑफ द बैलेंस शीट. सो ये आपका फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है. और ये फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के आपके टोटल 4 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए. आप बताओ, इज दिस क्लियर गाइस? इज दिस क्लियर? तो आप जब यहाँ पे बताओगे, एक होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ, अब इसी को आंसर कई बार स्टूडेंट्स लोग कैसे लिखते हैं, दे राइट इट दिस वे, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग. सो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, डू बायबैक, डू रिडक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स. अब आप मुझे बताओ इससे क्या होता है? आपने एग्जामिनर को खाली ऐसे बोला, हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ के आप आए हो. What you need to convince the examiner that you really know the concept well. So just explain it. The same thing. हम अभी भी यहाँ पर क्या करेंगे? हम अभी भी buyback और इन सब के बारे में ही बात करेंगे. But what we will do, we'll write it in a different manner and we will structure it in a manner that it looks very organized way. So we say that in case of financial restructuring, we are going to do the balance sheet reconstruction, and this we need to do because the balance sheet is over capitalized or it is under capitalized. एंड हम वहां पर उनको बताते हैं ये सिचुएशन होता है, इस सिचुएशन में हमें ये करना है, इस सिचुएशन में हमें ये करना है. और ऐसा क्यों करना है? क्योंकि ये सिचुएशन अराइज हो चुका है. बिकॉज द बैलेंस शीट इज आइदर ओवर कैपिटलाइज और अंडर कैपिटलाइज. सो इट इज इम्पैक्टिंग द अर्निंग्स पर शेयर, it is impacting the market price per share. Company is not able to justifiable their return, or the company wants to improve their return on equity, return on even return on net worth, right? Or it wants to write off the losses on the balance sheet. So these are the situations where you need to do a financial reconstruction or restructuring. So exam में कैसे questions आपको मिल सकते हैं? You may get a straight away short note, right? You may get a short note on financial reconstruction or restructuring, or maybe they can give you a question that what are the tools for financial reconstruction, right? Or they can give you which tool suitable. They can give you a situation और आपको यहाँ पर वो पूछेगा, आप बताओ which is the suitable tool
ऑफ फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन और रिस्ट्रक्चरिंग जो यहाँ पर आपका फिट बैठता है। तो इस तरह से करके आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। सो इस बार के अटेम्प्ट में आई थिंक जिस जून दिसंबर 2020 आइदर ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दे हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन एंड व्हिच वाज अगेन इंडिकेटर्स। इसको आप ये भी बोल सकते हो, दीज आर द इंडिकेटर्स दैट द कंपनी नीड financial reconstruction, right? These are the indicator that the company needs financial restructuring. The company needs financial restructuring. This is the point. आप बताइए, this is clear? Is this part clear आप लोगों को? हाँ सर, क्लियर। ये वाला चलिए, तो फिर हाँ अब हम यहाँ पर Yes, आगे sir. बढ़ते हैं एंड देन लेट्स पिक अप द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। The next type of restructuring is called as market restructuring. हम पहले यहाँ पर स्लाइड्स में खत्म करते हैं, then we will go to the module और एक बार चेक करेंगे कि हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सेम था कि नहीं था। So हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम बोलते हैं मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है, मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग। अब मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे कैसे हो सकता है, तो मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग में आपके पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और मार्केट के साथ ही इंस्टीट्यूट ने क्या करके रखा हुआ है, टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग को इंक्लूड किया हुआ है। बट आई विल टेल यू, अब यहाँ पे देखो, आप मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग को समझो, टेक्नोलॉजी को अलग से समझते हैं। सॉरी, सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन फॉर मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग, तो मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग आपके 4 टाइप के हो सकते हैं। देयर कैन बी 4 टाइप्स ऑफ मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग। One of the type of market restructuring would be where I say market penetration, MP, that is market penetration. Now what do you mean by market penetration? मार्केट पेनिट्रेशन का ये मतलब होता है जब आप एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर्स को अक्वायर कर लेते हो, तो आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, ठीक है। सो हियर इन दिस मार्केट पेनिट्रेशन यू फोकस ऑन the existing market, right? You focus on the existing market and with your existing product, आप जो प्रोडक्ट को बेच रहे हो उसी में ही, तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर अक्वायर करते हो। तो स्ट्रेटेजीज लाइक योर हॉरिजॉन्टल, राइट, स्ट्रेटेजीज लाइक योर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, जहां पर आप क्या करोगे, यू विल अक्वायर द कॉम्पिटिटर्स। तो ये आपके लिए क्या हो गया, मार्केट पेनिट्रेशन। एक तरीके का मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग ये है, ठीक। दूसरे तरीके का मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग क्या हो जाएगा आपके पास, द सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग वुड बी मार्केट डेवलपमेंट, MD। दिस इज योर मार्केट डेवलपमेंट, राइट। अब जब आप यहाँ पर मार्केट डेवलपमेंट का बात करोगे, तो मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट तो सेम रहता है लेकिन आप उसको नए मार्केट में लेकर जाते हो। सो व्हेन यू टेक योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, देखो नाम से ही लग रहा है ना, मार्केट डेवलपमेंट, सो द market is getting developed. So how it is getting developed, because we are entering into the new market. So when you take your existing product to the new market, तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, मार्केट डेवलपमेंट। सो ऑल द MNC कंपनी दे डू दिस ओनली। आप देखो, जैसे अभी आप यहाँ पे देखो, हुआवे को आप देखो, या आप बेस्ट एग्जांपल टेस्ला, ठीक है, आप टेस्ला को देखो यहाँ पे, एलॉन मास्क, करेक्ट, आई होप आई हैव रिटन इट करेक्ट, इट्स नॉट टेल्सा और टेस्ला, ये कंफ्यूजन रहता है, हाँ दिस इज टेस्ला ओनली, Correct. दिस इज Correct. करेक्ट, राइट। वो नहीं तो मीम्स बन जाते हैं ना, इसीलिए। सो यहाँ पे देखो, टेस्ला यहाँ पर आ जाता है। सो टेस्ला इज ट्राइंग टू एंटर इनटू इंडिया, राइट, टेस्ला इज ट्राइंग टू एंटर इनटू इंडिया। तो ये आपका क्या हो गया, मार्केट डेवलपमेंट। तो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्स आप पहले मतलब नहीं बनाते थे, आप पहले भी बनाते थे, आप यूएस में उसको बेच रहे हो और भी बहुत सारे कंपनीज कंट्रीज के अंदर आप उसको बेच रहे हो, अब आप इंडिया में आ रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, टेस्ला इज अडॉप्टिंग मार्केट डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ द big giant companies are doing market development and they are trying to enter into India, क्योंकि उनको इंडिया में क्या दिख रहा है, काफी ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है, उनको लग रहा है कि इंडिया में काफी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो दिस इज द मार्केट डेवलपमेंट। फिर अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपके पास नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट
प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, आप अपने एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट को लेकर आते हो। सो इन द एग्जिस्टिंग मार्केट व्हेन यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स, तो ये आपके लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लो तो एप्पल इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट। सो एप्पल लॉन्चेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप देखो, उन्होंने आईफोन को लॉन्च किया, उन्होंने आई पैड लॉन्च किया, उन्होंने आई पॉड लॉन्च किया, ठीक है। अभी आई वॉच आप वहां पे देखो उसको लॉन्च कर दिया। इसके अलावा उनके पास जो उनका डेस्कटॉप सिस्टम है, ठीक है, मैकबुक अगर आप देखो, तो ये सब इनके क्या हो गए, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट्स हो गए, बट यही सब सेम अपने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में करते हैं। सो ये इनके लिए क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन अगेन आपके पास ऐसा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पर क्या करते हो, in case of market restructuring, right, in case of market restructuring, when you do diversification, you altogether enter into the new space, altogether you enter into the new sector। तो ये आपके लिए क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। बेस्ट एग्जांपल यू कैन गिव इज लेट्स से रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जियो के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो के साथ टेलीकॉम स्पेस में एंटर कर गया। they have entered into the telecom space। इसी तरह से आप देखो with Jio Mart they have entered into the online space। ये सब क्या हो गया इनका डाइवर्सिफिकेशन। रिलायंस रिटेल जो इनका जियो मार्ट बोल दो या फिर यहाँ पे आप रिलायंस रिटेल बोल दो, उससे ये लोग ऑनलाइन स्पेस में चले गए, ठीक है। तो ये इनका पार्ट आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का। जब आप ऑल टुगेदर एक नए सेक्टर के अंदर ही एंटर करते हो, ये हो गया आपके लिए क्या, डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड दिस इज योर मार्केट डेवलपमेंट, और ये आपका मार्केट पेनिट्रेशन। सो ये मार्केट डेवलपमेंट में आपके पास चार चीजें हैं। अब मार्केट डेवलपमेंट आपको क्यों करना जरूरी है, बिकॉज यू वांट टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंसी, यू वांट टू डेवलप द कोर कॉम्पिटेंसी। आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करना चाहते हो। एंड कोर कॉम्पिटेंसी को मैंने आपको ऑलरेडी डिफाइन किया था। व्हाट यू मीन बाय कोर कॉम्पिटेंसी, हर वो चीज जिससे आपको आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर क्या मिले, एज मिले। यू वांट टू गेट एज ओवर द कॉम्पिटिटर्स। इसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या होता है, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर, टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हो। यू वांट मोर एंड मोर कस्टमर्स टू गेट अट्रैक्टेड टू यू। यहाँ पर यू वांट टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। एंड ऑब्वियसली अगर आपका मार्केट शेयर यहाँ पर इंक्रीज हो गया तो आपके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ये दोनों ही क्या होने वाले हैं, फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले हैं। सो दैट्स वेयर यू हैव मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग। अब मार्केट रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आपके पास और अदर ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं, यू कैन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स, यू कैन एंटर इनटू जॉइंट वेंचर्स। आप हो सकते हो स्ट्रेटेजिक अलायंस में एंटर करो। ये सब टर्म्स अभी आपको थोड़ी देर बाद और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज जॉइंट वेंचर एंड स्ट्रेटेजिक अलायंस। जैसे आप बेस्ट एग्जांपल देखो, जैसे जेट एयरवेज है, ठीक है, जेट एयरवेज और एतिहाद एयरवेज दोनों के बीच में क्या था, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था, ठीक है। बिफोर जेट एयरवेज टुक स्टेक इन एतिहाद एयरवेज, उनके बीच में था। आज भी अगर आप देखो तो जैसे इंडिगो एयरलाइंस है, तो इंडिगो एयरलाइंस का काफी सारे इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ क्या है, वहां पर टाई अप है, ठीक है। और जैसे आप ये ऐसे एग्जांपल लो, लेट्स से मैं एक डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से यूरोपियन एयरवेज, ठीक है। अब ये जो यूरोपियन एयरवेज है, यूरोपियन एयरवेज लेट्स से आप लंदन से ट्रैवल करना चाहते हो, लेट्स प्रिज्यूम या सो लेट्स प्रिज्यूम आप लंदन से ट्रैवल करना चाहते हो इन इंडिया, बट इंडिया में आपको कहाँ आना है, लेट्स से यू वांट टू गो टू भोपाल, आपको भोपाल ट्रैवल करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो यूरोपियन एयरवेज है ये आपको क्या करेगा, लंदन से लेट्स से मुंबई लेकर आ जाएगा। सो लंदन से मुंबई तो आप किस में आ गए, यू हैव कम इन यूरोपियन एयरवेज।
और फिर मुंबई से भोपाल आप किस में ट्रैवल करोगे? आप ट्रैवल करोगे इन इंडिगो एयरलाइंस। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आप दो अलग अलग कंपनी का टिकट परचेज नहीं करोगे। यू विल परचेज टिकट फॉर यूरोपियन एयरलाइंस, और यूरोपियन एयरलाइंस का इंडिगो के साथ यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होगा कि यहाँ से आपको मुंबई टू भोपाल इंडिगो की फ्लाइट में जाएंगे, लेकर जाना होगा। तो इट्स एज गुड एज आपने इंडिगो का ही टिकट खरीदा है, या इट्स एज गुड एज यूरोपियन एयरलाइन ही आपको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने क्या कर लिया है, पार्टनरशिप कर लिया, पार्टनर एयरलाइन। तो सेम वे अगर आपको भोपाल से सपोज करो लंदन जाना है, so European Airways will not come to Bhopal. So from Bhopal, you are going to board a flight from Indigo. You will come to Mumbai, and then Indigo people will give you the boarding pass for your European Airlines, जिसमें आप बोर्ड करके लंदन जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपने एक तरीके से स्ट्रेटेजिक अलायंस सेटअप कर लिया है, आप जॉइंट वेंचर्स को यहाँ पर सेटअप कर लेते हो। इज दिस टर्म क्लियर? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका क्लियर है? जी सर, मेरे को स्ट्रेटेजिक अलायंस में डाउट हो रहा है। हाँ बताओ। स्ट्रेटेजिक अलायंस में देखो, स्ट्रेटेजिक अलायंस देखो, वैसे तो अभी अपने को स्ट्रेटेजिक अलायंस और जॉइंट वेंचर ऑल टुगेदर एक नया टॉपिक ही आएगा। बट स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या रहता है, सी, दो कंपनीज को हम जब बोलते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक अलायंस में एंटर कर रहे हैं, राइट, लेट्स से आई से कंपनी A and company B, they both want to enter into a strategic alliance. So how they will enter into a strategic alliance? इनका एक अपना common memorandum of understanding execute होगा, जहां पर ये डिस्कस करेंगे कि ए इस अलायंस के अंदर क्या काम करेगा। तो इसके अंदर आपका जो रोल ऑफ ए वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड होगा, इसी तरह से व्हाट इज द रोल ऑफ बी वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड होगा। अब ध्यान रखना, ए और बी मर्ज नहीं कर गए, ये दे हैव नॉट बिकम अ सेम कंपनी, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट कंपनी। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बनने के बाद भी दे बोथ आर इंडिपेंडेंट कंपनी, बट एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो एक साथ यहाँ पर आए। जैसे आप एग्जांपल लो, लेट्स से आप एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लो। एक्सिस बैंक के कार्ड से अगर आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, ऐसा देखा आपने? Have you seen something like this, that if you purchase anything using Axis Bank per a particular credit card, if you use Axis Bank credit card to purchase things from Flipkart, you get additional discount? ऐसा आपने देखा है? सर Yes, सर ये yes. वाला नहीं, मुझे एक याद आ रहा है कि एयरटेल बैंक अगर एसबीआई का कार्ड यूज करते हैं तो ज्यादा डिस्काउंट देते थे। ज्यादा डिस्काउंट एयरटेल देता है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो गया है, स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया। तो एग्जैक्टली यही सेम पॉइंट हो गया, उन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रेटेजिक अलायंस है यहाँ पर। आया समझ में? ओके। राइट। तो हाँ सर, स्ट्रेटेजिक अब आ अलायंस, गया। अब आप मुझे बताओ, क्या एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट मर्ज हो गए? क्या दोनों कंपनीज एक ही हो गए? आंसर इज नो, बोथ द कंपनीज आर इंडिपेंडेंट, बट दे आर गिविंग यू व्हाट, दे आर गिविंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। और इसकी वजह से फायदा क्या होता है? सो पीपल हु परचेज who are regular buyers from Flipkart, they would say, why not to take a Axis Bank credit card, right? Because we regularly purchase goods from Flipkart, तो हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम वे अगर आप यहाँ पर देखो कि एक्सिस बैंक के जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं, जिनके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, दे वुड से अगर कोई चीज मुझे अमेजोन पे मिल रहा है और वही चीज मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है, तो आई विल परचेज इट ऑन फ्लिपकार्ट बिकॉज मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस व्हिच दे हैव एंटर्ड इनटू। मेक सेंस? यस सर। मेक सेंस? तो यस ये सर। आपके पास पॉइंट आ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड बिटवीन द कंपनीज। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से भी आपका मार्केट जो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। यू गेट मोर कस्टमर्स, मोर पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू, यू आर एबल टू डू मोर सेल्स हियर। ओके, सो ये आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस का पार्ट हो गया। सेम वे टेक्नोलॉजी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजिकल रीस्ट्रक्चरिंग में भी यही होता है, यू एंटर इनटू जॉइंट वेंचर, यू एंटर इनटू स्ट्रेटेजिक अलायंस सो दैट आप यहाँ पर नए मार्केट्स में एंटर कर सको। ठीक, नाउ लेट्स गो टू द मॉड्यूल। एक बार अब हम अपने मॉड्यूल पे चलते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो कितना है और मॉड्यूल में कैसा है। तो आप ये देखो, फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग डील्स विद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कैपिटल बेस and raising the finances for the new project, and financial restructuring also helps the firm to revive from a situation of financial distress without going through the liquidation, right? और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग क्यों करना पड़ता है हमें? बिकॉज पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है,
काफी ज्यादा यहाँ पर आपके पास कंपटीशन है, इरोजन और लॉस ऑफ मार्केट शेयर, इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर आप देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, बाय बैक कर लो, ऑल्टरेशन और रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर लो, डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर लो आप, है कि नहीं। और शॉर्ट टर्म ये सब आगे आपको डिटेल में समझाया हुआ है, जो मैंने आपको ओवर कैपिटलाइज और अंडर कैपिटलाइज वाला पॉइंट बताया। तो अगर चल रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर क्वेश्चन आए तो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मटेरियल टू राइट इन द एग्जाम। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे मार्केट या टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग को देखोगे, सो मार्केट या टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, हियर देयर आर यू एंटर इनटू द मार्केट, जिसमें आपको क्या करना है। सी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट और मार्केट सेगमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। तो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट। आप कोशिश करते हो कि आप अपने कोर कॉम्पिटेंसी को यहाँ पर इंप्रूव करो। आप यहाँ पर और कोशिश करोगे कि आप टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करो, जिसमें यू वुड वांट द न्यू टेक्नोलॉजीज टू कम टू यू। अब ये कैसे आएगा, व्हेन यू फॉर्म अलायंसेस। ये देखो, व्हेन यू फॉर्म अलायंसेस विद द थर्ड पार्टी जिनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देन जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल देके उन्होंने बताया कि टीसीएस जो है वो यहाँ पर इस तरह से काफी काम करता है, क्लाउड, एजाइल और ऑटोमेशन के ऊपर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया, टेक्नोलॉजी बेस्ड, राइट। इसी तरह से आप ये देखो, यहाँ आपको जैसे बता रहा है जॉइंट वेंचर्स, स्ट्रेटेजिक अलायंस, फ्रेंचाइजिंग, ये सब अगर आप सेट करते हो तो अगेन आपको यहाँ पर काफी बेनिफिट होगा। एंड दिस इज ऑल विल बी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। सो एज दे हैव यहाँ पर लिखा है ना, एज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, तो ये जॉइंट वेंचर, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये सब आपको वैसे भी डिटेल में समझाया हुआ है उधर, राइट। क्लियर ये वाला, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है आपको? यस सर, ठीक। ओके, चलिए फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड द प्रोसीजर फॉर इंप्रूविंग द कैपेबिलिटी, राइट, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज है, अब दे आर नॉट डूइंग वेल, या आपको वहां पर कुछ शिफ्ट करना है तो आप करते हो। इसके अंदर आपका क्या रहेगा, अगेन यू क्रिएट द न्यू डिपार्टमेंट, यू एक्सपैंड, या फिर आप कई बार डाउन साइज भी करते हो। तो अगेन जो तीन वर्ड्स मैंने आपको बताया था, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन, राइट। बस आपको ये तीन चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, एडिशन, डिलीशन एंड मॉडिफिकेशन। ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर करते रहना पड़ेगा। तो अब जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज के साथ आप ये काम करोगे, आपने एचआर, ह्यूमन, द लेवल ऑफ द एम्प्लॉयज, तो वहां पर क्या होगा, यू विल डू these three things and that will be your organizational restructuring. Not very relevant I would say, but yes, एग्जाम में अगर आपसे पूछा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग तो आप यहाँ पर फिर आंसर कर पाओगे, फाइनेंशियल, मार्केट, ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, करेक्ट। देन यहाँ पर नीचे आपके पास है लीगल फ्रेमवर्क जो आपको बताया हुआ है, दिस ऑल यू कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ, क्योंकि एनीवे ये हम लोग आगे जाकर कवर करेंगे। अब इसके बाद में जो आपके पास एक कॉमन पॉइंट आता है, दैट इज योर मर्जर्स एंड अमेलगमेशन, ठीक है। अब मर्जर्स और अमेलगमेशन में अगर आप देखो तो मर्जर्स और अमेलगमेशन में होता क्या है, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ या तो मिल जाता है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जैसे ए प्लस बी, ये दोनों मर्ज होकर क्या बन गए, लेट्स से ए बी लिमिटेड बन गए। या फिर अगर मैं बोलूं ए प्लस बी, ये मर्ज होके या तो ये ए लिमिटेड बन गया, या फिर ये बी लिमिटेड बन गया, या फिर ये ऑल टुगेदर क्या करते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं, दैट इज सी लिमिटेड। तो ये सब आपके क्या हो जाते हैं, मर्जर्स, एक्विजिशंस एंड अमेलगमेशन। अब कोई भी कंपनी दूसरे कंपनी के साथ क्यों मर्ज करेगा, आप मुझे बताओ। आइडिया और वोडाफोन क्यों मर्ज किया, व्हाई डिड आइडिया एंड वोडाफोन मर्ज्ड? Because आइडिया Jio came in the मर्ज किया, market. पार्डन? Because Jio is coming in the market with free offers to the customers. सो ज्यादा जो कस्टमर्स है वो धीरे धीरे करके जियो की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, सो Database यहाँ change हो रहा था. हाँ, तो डेटा यहाँ जो जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पर इस स्पीड से चेंज हो रहा था कि आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, दैट यू हैड टू गो देयर। दूसरा अगर आप यहाँ पे देखो रीजंस फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में, सो आप यहाँ पे देखो आपको ये दिया हुआ है, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। देखो रीजंस फॉर मर्जर्स एंड अमेलगमेशन में अगर आप देखोगे
तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है? टू बिकम बिगर। तो ये वो वाला पॉइंट आता है जो मैंने आपको बताया था, ग्रो इन ऑर्गेनिकली। यू वांट टू ग्रो इन ऑर्गेनिकली, और इसी के लिए आप क्या करते हो? आप मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करते हो। आप देखो जियो ने कितने सारे कंपनीज को खरीदा, जैसे टिकोना जो था उसको खरीद लिया, फिर हैथवे केबल को उन्होंने परचेज कर लिया। क्यों परचेज किया? बिकॉज दे वांट टू ग्रो बिगर। ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, जैसे जियो ने अक्वायर किया, जियो अक्वायर्ड हैथवे। क्यों अक्वायर किया? क्योंकि हैथवे केबल का काफी अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क था। उसको अक्वायर करने से जियो को उतना टाइम नहीं लगा जितना टाइम उसको ओरिजिनली लगता हर जगह पहुंचने के लिए। देन preempted competition. Preempted competition, talking of Jio, the best example is what? Your Vodafone and Idea. Vodafone और Idea यहाँ पर क्यों मर्ज किया? बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया था, इसकी वजह से उनको यहाँ पर कंपटीशन को बीट करने के लिए इनको इधर मर्ज करना पड़ा। देन अगेन यहाँ पर क्या आ जाता है? डोमिनेशन। Now when I talk about domination, आप देखो डोमिनेशन मतलब आप मार्केट में क्या चाहते हो? सिग्निफिकेंट चाहते हो। डोमिनेशन मतलब है यू वांट सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। सिग्निफिकेंट शेयर, आप मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर यहाँ पर चाहते हो। अब सिग्निफिकेंट शेयर अगर आप चाहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको रेगुलेटरी अथॉरिटीज को फेस करना पड़ेगा। कैन यू जस्ट से रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन होगा जिसको आपको फेस करना होगा अगर आप डोमिनेंट पोजीशन में आ जाते हो? तो ट्राई, कौन? ट्राई सॉरी नहीं, अगर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ CCS. CCI, CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब्यूज I ऑफ thought डोमिनेंट about पोजीशन। telecom. राइट, क्योंकि अपन टेलीकॉम का एग्जांपल बार बार ले रहे थे, तो यहाँ पर आप देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर बीच में आएगा और वो बोलेगा कि नहीं यार, दिस इज अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सो यहाँ पर CCI विल कम इनटू पिक्चर, राइट। तो ये एक अथॉरिटी है जिसको आपको फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज दो डोमिनेंट पोजीशन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम हियर। तो ये पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट मर्जर का हम लोगों ने ऑलरेडी चेक किया, सेक्शन 72A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो टैक्स पर्पस के लिए भी आप यहाँ पे मर्ज करते हो, बिकॉज टैक्सेशन बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। देन यू सी यू हैव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, करेक्ट। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का क्या मतलब होता है कि आपका जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कॉस्ट पर यूनिट गेट्स रिड्यूस्ड अल्टीमेटली। दिस ओनली इज फॉर द रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट पर यूनिट। आप यहाँ पे मर्जर कर लेते हो कि दोनों कंपनीज को बेनिफिट होगा। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल बट जस्ट टू गिव अ आइडिया। आपने 5 कंपनीज खोल के रखा हुआ है, ठीक है। अब 5 कंपनीज है तो 5 कंपनीज में आपको 5 कंपनी सेक्रेटरीज को अपॉइंट करना है, 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पांचों कंपनी को मर्ज करके एक ही कंपनी बना दो तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। यू नीड ओनली वन चार्टर्ड अकाउंटेंट एज योर ऑडिटर। नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अस बट जस्ट टेलिंग यू दैट वे। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपका कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो ये कब होता है? एक कंपनी है जो लेट्स से अपने 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, 30% ऑफ द टाइम वो आइडल बैठे हुए, वो जगह यूज नहीं हो रहा उनका। और एक ऐसा कंपनी है जो सिर्फ 30% कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो ये इनके लिए एक परफेक्ट मैच हो जाता है, राइट। या फिर वो ऐसा बोल सकते हैं कि देखो मैं इंडिविजुअली 70% पे हूँ, आप भी 70% पे ही काम कर रहे हो। आप ऐसे एग्जांपल लो, एक कंपनी है जो 70% कैपेसिटी पे काम कर रहा है और दूसरा कंपनी है जो लेट्स से 80% कैपेसिटी पे काम कर रहा है। अब ये दोनों जब मर्ज करते हैं तो आप देखो इनका कंबाइंड शेयर कितना हो गया? 150%। अब ये क्या बोलेंगे? लेट्स से इसको और अच्छे एग्जांपल से मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर चेक, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। यू सी दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, economies of scale. So in case of economies of scale, we want to reduce the cost. We want to reduce the cost. अब आप cost कैसे reduce कर सकते हो? देखो, you have company A जिसका production capacity, I am talking about the production capacity is to produce 100 units. लेकिन कंपनी A डिमांड कितने का जनरेट कर पा रहा है? कंपनी A is able to generate demand for 70 rupees or 70 units only. Similarly, you have company B
इनके पास 100 का कैपेसिटी है और ये 80 का ही डिमांड जनरेट कर पा रहे हैं। सो व्हाट दे कैन डू, ये दोनों मर्ज कर जाते हैं। जब ये दोनों मर्ज कर जाएंगे तो इनका कंबाइंड कैपेसिटी कितना हो जाएगा, ए बी का कंबाइंड कैपेसिटी हो जाएगा 200 और 150 का तो एग्जिस्टिंग इनके पास ऑलरेडी डिमांड है। पर जब ये 120 मतलब ए बी मर्ज कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल हैव अ बिगर मार्केट वैल्यू, उनका मार्केट शेयर भी बढ़ेगा और मार्केट वैल्यू भी बढ़ेगा और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड देन दे विल टारगेट कि हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं कि हम ये 50 का बेनिफिट और रेस करें, हम ये 50 का बेनिफिट और रेज करें। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम 50 का सेल्स और बढ़ाएं, ये डिमांड हम और बढ़ाएं जिससे कि ये 200 हो जाए आइडल कैपेसिटी। ए कंपनी ए इंडिविजुअली कोशिश कर रहा था बट वो डिमांड 70 के बियॉन्ड नहीं जा रहा था, कंपनी बी 80 के बियॉन्ड नहीं जा रहा था, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया था, दोनों मर्ज कर गए। अब वो बोलते हैं हमारे पास एक अच्छा खासा मार्केट शेयर आ चुका है, ठीक है, नाउ वी कैन अट्रैक्ट दी अदर कस्टमर्स ऑल्सो एंड ग्रेजुअली 150 से हम यहाँ पर 200 तक जा सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ पर डबल भी कर दे अपने कैपेसिटी को और फिर डिमांड को और बढ़ाए। तो दिस हैपेंस इन केस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड अगेन ग्रोइंग बिगर। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपका सिंपली यहाँ पर कैसे रहता है, जब आपका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आप बताओ, इज दिस क्लियर ये वाला पार्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या ये क्लियर हुआ यस आप सर। लोगों को? Yes, sir. Okay, then to acquire sorry, then to acquire न्यू टेक्नोलॉजी। सो नए टेक्नोलॉजी को अक्वायर करने के लिए भी आपको मर्जर करना पड़ता है, राइट। सो जिस कंपनी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है या जो छोटी कंपनी है जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, सो स्मॉल कंपनी विच हैज यूनिक टेक्नोलॉजी, बड़े कंपनीज उसको खरीद लेते हैं। आप एक और एग्जांपल ले लो, बेस्ट एग्जांपल फेसबुक हैड टेकन ओवर व्हाट्सएप। आप ये देख रहे हो, फेसबुक हैड टेकन ओवर व्हाट्सएप। अभी व्हाट्सएप का भी एक Instagram. सब्सटीट्यूट आ गया है, दी आई डोंट रिमेम्बर द नेम। अभी काफी ज्यादा वो चल रहा है कि लोग व्हाट्सएप से अब माइग्रेट करेंगे उस नए ऐप के ऊपर, राइट। देखना कोई ना कोई गूगल या कोई भी ऐसा ऐप आएगा वो बोलेगा हम लोग अब इसको खरीद रहे हैं, तो दे विल परचेज इट। तो आपके पास नया टेक्नोलॉजी कुछ है, नाउ समवन इज गोइंग टू बाय दैट टेक्नोलॉजी फ्रॉम यू, तो कोई ना कोई बड़ा कंपनी वो टेक्नोलॉजी को वहां पर खरीद लेगा। So this way you get there. Then improved market reach and industry visibility. इसका तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक और आईएनजी वैश्या। कोटक एंड आईएनजी वैश्या ये वाला मर्जर जो था, ये एग्जैक्टली इसी के लिए था कि आपका मार्केट रीच बढ़े और इंडस्ट्री विजिबिलिटी बढ़े। मैंने आप लोगों को बताया था कैसे कोटक महिंद्रा बैंक साउथ इंडिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा था, and ING Vysya was having a very good significant market share in the southern India. So when they merged together, not just their market value increased, but also their market reach increased. They were able to access to more and more uh, customers, right? And it also resulted in the economies of scale, because आप देखो एक बिल्डिंग के अंदर कोटक महिंद्रा बैंक का भी ब्रांच था और आईएनजी वैश्या का भी ब्रांच था। अब दोनों मर्ज हो गए तो दे कैन आइदर हैव अ बिगर ब्रांच, राइट, or they can close one branch and they can have only one for Kotak ING combined. आ रहा है आपको समझ में ये वाला पॉइंट? Is this point clear to you all? सर तो Yes, वी yes. कैन सर वी कैन राइट एन एग्जाम दीज एग्जांपल्स Yes, आल्सो ना कि exactly. Yes, that's the reason I'm telling you all these examples here. All these examples I'm telling you only because कि आप यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिख रहे हो ये तो है ही यहाँ पे, इसके बाद में आप वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख के आओगे कि कोटक एंड आईएनजी वैश्या व्हेन दे मर्ज टुगेदर their market reach increased, Kotak and ING could go to pan India basis। ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो इस तरह से करके। Facebook had acquired WhatsApp for accessing the better technology। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर आप यहाँ पे बोल सकते हो रिडक्शन फॉर द कॉस्ट पर यूनिट, राइट, यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल हियर। देन टैक्स बेनिफिट के लिए आप बोल सकते हो रिवर्स मर्जर। डोमिनेशन में आप बोल सकते हो कि डोमिनेशन में तो आ जाएगा बट देयर कैन बी challenges which may come across from the competition commission of India, right। preemptive competition के लिए आप बोल सकते हो preempted competition। Vodafone and Idea merged because it was facing huge competition from Jio and Airtel।
growing bigger. So Jio acquired Hathway Cable, Jio acquired Tikuna, all this. Why? Only because of this reason, because they wanted to grow bigger. Yes, Amita, आप बताओ, कुछ बोल रहे हो आप? सर वो प्रियमपुर कंपटीशन में मुझे एक बार ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है कि एयरटेल की नहीं कुछ इनिशिएटिव लिए, क्योंकि वोडाफोन नहीं आइडिया देखो, एक बात बताओ, वेरी see स्मॉल when you are कंपनी. writing a example, see when you are writing a example there, at that point of time जिन्होंने मर्ज कर दिया आप उसके बारे में एग्जांपल दोगे. तो अब अगर हम इस पे डिबेट पे आ गए कि एयरटेल ने क्यों नहीं मर्ज किया, एयरटेल को लगा कि उसका मार्केट शेयर काफी अच्छा है, उसको जरूरत नहीं है, तो एयरटेल ने मर्जर नहीं किया. और यहाँ पर वोडाफोन और आइडिया को लगा कि हमें मर्जर करना जरूरी है, तो उन्होंने यहाँ पर मर्जर कर दिया. उन्होंने यहाँ पर फिर मर्जर कर दिया, सिंपल. गॉट इट? राइट? Yes. ओके. प्लीज आप बस खाली म्यूट करके रखना when you are not speaking, so that we don't have any disturbance in the class, right? Okay. Next पे. So this is again one of the important question in exam. Reasons for mergers and amalgamation. I can also show you the past paper. आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. इसी के रिगार्ड में द सेम क्वेश्चन विच आई विल टेल यू, यू विल गेट दिस क्वेश्चन. जैसे मैंने आपको बताया था, इस अटेम्प्ट में तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आई कैन शो यू. See this. Corporate restructuring aims at different things at different times for the different companies, but the single objective of every restructuring is to eliminate the disadvantage and combine the advantage. Comments on the various need for undertaking corporate restructuring. राइट? तो ये आपका एक क्वेश्चन आ गया. फिर ये देखो, ये हमने अभी ओवर कैपिटलाइज्ड और अंडर कैपिटलाइज्ड कंपनी के बारे में पढ़ा था. राइट? तो ये सेम आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया. सेम वे अभी देखो, जो अभी एग्जैक्टली जो नीड फॉर मर्जर्स है उसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. यहाँ पे यू विल गेट दिस क्वेश्चन हियर. लेट मी जस्ट सी हियर. बिजनेस मॉडल रीस्ट्रक्चरिंग. ओके. ये जैसे एक क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है ये. That inorganic growth provides an organization with an avenue to attain accelerated growth as compared to organic growth in general. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि inorganic growth कैसे speed में आपको help करता है. How does it helps you? तो ये आपका पूरा प्रोविजन यहाँ पर आ जाएगा inorganic growth के बारे में. Then जो बेसिकली मैं आपको क्वेश्चन अभी दिखा रहा था वो यहाँ पर ये था. अब ये देखो, ये वापस से इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए आ गया. बट आप जस्ट चेक करो, इन्होंने क्या कर दिया, दे हैव चेंज द लैंग्वेज दैट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज एन इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटजी दैट सिग्निफिकेंटली चेंज द कंपनीज बिजनेस मॉडल. सो दो क्वेश्चन जो पिछले अटेम्प्ट में आपको अलग अलग पूछा गया था उसको मर्ज करके एक साथ दे दिया. जैसे एक ये क्वेश्चन था, दिस वाज द क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्रोवाइड्स एक्सेलरेटेड, ये वाला पार्ट. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इधर आपको ये क्वेश्चन दिया था, रिस्ट्रक्चरिंग टेक्स प्लेस, और ये देखो ये वाला, इट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एम्स एट changing the company's business model, financial structure, and address the various challenges. So question number 1A from December 2017 and question number 1B of June 2018 दोनों मर्ज करके आप देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 1A ऑफ दिसंबर 2018. आ रहा है आपको समझ में? तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन, मैंने आपको जैसे बताया था, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा बट दे आर गोइंग टू आस्क यू इट इन अ डिफरेंट मैनर. तो रीजंस फॉर मर्जर्स, अभी ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक ये कौन से अटेम्प्ट में पूछा था, बिल्कुल रिसेंट में था, क्योंकि हम ये टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ जाओगे. ये देखो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, दिस इज दैट क्वेश्चन. Mergers and acquisitions have one common goal, that is create synergy that makes the value of the combined companies greater than the sum of the parts. Analyze briefly to focus on the visible benefits of such combination. तो एक ये वाला पॉइंट आता है. तो यहाँ पर मैं आपको देखो एक सिनर्जी बेनिफिट्स के बारे में भी बता देता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय सिनर्जी बेनिफिट्स? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे सिनर्जी बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, तो सिनर्जी गेन का सिंपल मतलब होता है दैट
whatever your worth is individually, and if you combine yourself, your worth is more. So let's say company A is valued at 100, okay, and company B is valued at 100. Both of them are valued at 100. अगर हम इन दोनों कंपनी को मर्ज कर दें ए बी, तो ऑब्वियस सा बात है ये तो 200 तो रह गई, तो यहां पर आपके पास सिनर्जी गेन नहीं है. बट इफ ए बी मर्ज होके इनका वैल्यू 200 से ज्यादा हो जाता है, राइट, अगर ए बी का जो वैल्यू है वो 200 से ज्यादा हो जाता है, लेट्स प्रिज्यूम ए बी इज नाउ वैल्यूड एट 240, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इनको 40 का क्या हो गया, सिनर्जी गेन. 40 का इनको क्या हो गया है यहाँ पर, synergy gain. This synergy gain can be in terms of their market value. This synergy gain can be in terms of their earnings per share. This synergy gain can be in terms of their overall valuation. कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन के ऊपर, तो ये आपके पास आ जाता है सिनर्जी गेन. तो जब हम वैल्यूएशन करेंगे वहां पर बकायदा आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, फाइंड आउट द सिनर्जी गेन. वहां पर ऐसा होगा कंपनी ए मर्ज्ड विद कंपनी बी और दोनों का बैलेंस शीट या कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द सिनर्जी गेन. तो वो हम वहां पर डेफिनेटली चेक करेंगे. तो सिनर्जी गेन का सिंपल यहाँ पर मतलब क्या होता है, दैट इंडिविजुअली और द कंबाइंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, सी इट्स the combined valuation of the company is greater than the combined valuation of the company is worth more than their individual valuation, is worth more than their individual valuation. It is worth more than their individual valuation. तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, इन दैट केस देयर इज सिनर्जी गेन. सिनर्जी टर्म आप बहुत अच्छे से सेट रखना, बिकॉज चैप्टर 1 के कमेंट वाले क्वेश्चन में सिनर्जी आपको काफी बार यहाँ पे मिलेगा. आप बताओ क्या ये क्लियर हुआ आपको, क्या ये क्लियर हुआ आपको, यस दिस पार्ट, ठीक है. तो सिनर्जी का ये आपके पास गेन आ जाता है. अब आप देखो हम नेक्स्ट यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मिलेगा, दिस इज मर्जर्स के लिए. तो कि मर्जर्स कैसे कैसे हो सकता है, आप मर्जर्स किस तरह से कर सकते हो. सो मर्जर्स कैन टेक प्लेस बाय परचेजिंग द एसेट और मर्जर्स कैन टेक प्लेस बाय परचेजिंग द कॉमन शेयर, राइट. आप क्या कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स को परचेज करके आप मर्ज कर सकते हो. जैसे आप यहाँ पर देखो, जैसे कंपनी ए है, ठीक है, कंपनी ए ने कंपनी बी के 100% शेयर्स को खरीद लिया, ठीक है, 100% आपने शेयर्स को परचेज कर लिया, तो यहाँ पर आपने उस तरह से भी मर्जर कर लिया. और कंपनी ए कैन बी बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट्स और कंपनी ए द मर्जर कैन टेक प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स. इसको हम बोलते हैं शेयर स्वैप अग्रीमेंट. शेयर स्वैप अग्रीमेंट कि कंपनी ए के शेयर्स आपको मिल जाएंगे, आप बदले में कंपनी बी के शेयर सरेंडर कर देना. जैसे आप यहाँ पे देखो रिलायंस और फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर ग्रुप के अंदर अभी यहाँ पर ट्रेड हुआ था, मर्जर हुआ. तो रिलायंस ने क्या किया, फ्यूचर ग्रुप को बोला आप फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को क्या कर दो, प्लीज म्यूट, ओके. सो रिलायंस ने यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को क्या बोला, आप अपने फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स को सरेंडर कर दो, बदले में आपको हम रिलायंस के शेयर्स दे देंगे. तो ये हो गया बाय एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स. और दूसरा तरीका क्या होता है कि रिलायंस यहाँ पे जाके फ्यूचर ग्रुप के शेयर होल्डर्स को बोले कि आपके शेयर का मार्केट वैल्यू है 25 रुपीज, वी आर रेडी टू पे यू 30 रुपीज, आप हमें 30 रुपया पे कर दो और बदले में ये शेयर्स उठा के आप ले जाओ. तो बाय परचेजिंग द कॉमन शेयर्स, तो ये आपका कैश डील हो जाएगा. This is going to be a cash deal and this is going to be a share swap deal. तो ये दोनों तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मर्जर्स को कर सकते हो. अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स बताए गए हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस. तो अब जो यहाँ से अपना टॉपिक है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स एंड ऑल, ये थोड़ा कनेक्टिंग टॉपिक है. सो दिस वी विल स्टार्ट टुमारो, ठीक है, हम कल इसको फिर शुरू करेंगे. और यहाँ पर मर्जर्स, तो ये वाला जो पार्ट है अगेन आपके एग्जाम के लिए ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा.
इनमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो हम यहाँ पर समझेंगे एक एक टर्म को कि मर्जर्स क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मर्जर्स यहाँ पर हम कल कवर करेंगे, ऑल विद द डिफरेंट एग्जाम्पल्स। तो मैंने जो आप लोगों को तरीका बताया था कल वाला, आप लोग वही काम करना। एंड आपको प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपका ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। यू ऑल्सो हैव द एक्सेस टू दिस फोल्डर। तो इस फोल्डर से आप क्या कर सकते हो, आराम से अपने नोट्स वगैरह को आप बनाओ। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है इसका आप नोट्स आप आराम से बना सकते हो, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको लिख के दिया इधर, ऑल दीज थिंग्स। एंड देन टुमारो विल स्टार्ट विद द मर्जर्स, ये वाला पार्ट। आई थिंक अनदर 2 या 3 लेक्चर जितना भी अपने को लगे विल डू, एंड चैप्टर 1 को फिर हम यहाँ पर फिनिश करेंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर देन, राइट? टेक केयर, बाय बाय। गुड नाइट, थैंक यू सर। You're welcome. कल फिर 9 बजे ही हमारा लेक्चर होगा, 9 o'clock, and around 8:45 के करीब I'll share the link with you all. Okay, sir. Okay? So this Okay, is a sir. Google Drive, Okay then. sir. Yeah, this is there on the Google Drive. Yes, the notes are there on the Google Drive. So there is a link on our Zoom. That I share it in the group. जो हमारा Okay. WhatsApp ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप के अंदर जैसे मैंने आज लिंक शेयर किया वैसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, और नोट्स Okay. वगैरह सब गूगल ड्राइव पे है, उसका एक्सेस आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। सो विद दिस वी Okay, कैन रैप इट अप। Thank you, sir.